here by clicking it. So yesterday we were studying Johnson's microcator and Reed type comparator. These two comparators we have finished yesterday. Simply dial indicator is also one type of mechanical comparator. It is treated as instrument as well as comparator. Okay, and then Johnson's microcator we saw yesterday. Twisted strip is there, and if the plunger moves up, this bell crank lever takes a position. This plunger moves up, then bell crank lever takes this position. It is slightly extended, so this twisted strip goes to right side, and so also the pointer goes to right side, and that much plus reading we are adding into the standard dimension, which we have taken over the known standard made up by built by slip gauges. That procedure yesterday I explained you, and taken the feedback also that you have understood it. So similarly, if plunger moves up and down, what happens, that only I am going to explain now. Rest of the procedure is same, that this plunger is made to some standard dimension and close to the dimension which is to be measured. Then the plunger is brought on to the actual dimension, and plus minus difference is measured on the comparator. So various accuracies of these comparators, etc. That also we studied. Reed type we saw. So this is one fixed reed, this is moving reed, and this is moving up, so that this floating block will be tilted and the difference will be seen. Means if the dimension is more, then this right side box will go up. However, left side block will remain in the same position, so that this floating block, when it is twisted, it is connected to the pointer, and so also the pointer will also tilt. So that was about the reed type comparator. Now today we will go with sigma comparator. This is very famous comparator. तो ये थोड़ा मैं अभी बड़ा करता हूँ बच्चों के लिए. अभी बच्चे को एक मिनट है. ये सब एक साथ आना भी चाहिए. हाँ, सब आ गया. बच्चों दिख रहे हैं बराबर? हेलो, टेल Yes, मी. sir. हाँ, तो ये सिग्मा कंपैरेटर क्या है? तो इसमें this is the plunger. See, this is moving up and down, and this is a slit diaphragm. Slit diaphragm, in that it is moving up and down. It is connected to the knife edge. Here, this is a knife edge. हाँ? ऐसा नुकीला एक ऐसा पॉइंटर रहता है, पॉइंटर टाइप नाइफ एज. इसको स्क्रू से टाइट किया है. इसका मतलब ये ऊपर नीचे होएगा तो नाइफ एज भी ऊपर नीचे हो जाएगा. दिस प्लंजर इज इन द कॉन्टेक्ट विद दैट स्टैंडर्ड डायमेंशन, अननोन डायमेंशन. अगर अननोन डायमेंशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड डायमेंशन से ऊपर है तो क्या होगा वो मैं अभी बताता है. इफ दिस प्लंजर मूव्स अप, along with that you just pay attention to my cursor. If this plunger moves up, this knife edge will also move up. Okay, but here is this Y arm. This is known as Y arm. Okay, this Y arm is connected to the moving block. This is one fixed block and this is moving block. Okay, so and here this is a axis of rotation of fixed block and moving block, and they are attached to each other by this crossed stripped hinges. You can see here this one, this fixed block and moving block. It is in 3D. It is looking like this. Okay, so it is just rocking like that. मतलब what we call this clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise along this axis of rotation. Okay, this is moving. This is moving like this. This is rocking like this along this particular point. Okay, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, यानी ये पॉइंट. ओके, तो ये इसको स्प्रिंग एक्शन से इसको टच में, ये फिक्स और ये मूविंग ब्लॉक है ना, स्प्रिंग एक्शन से इस नाइफ एज को टच में. अगर मेरा प्लंजर ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लंजर ऊपर जाएगा तो ये नाइफ एज भी ऊपर चला जाएगा. If knife edge moves up, this moving block is in touch with the knife edge, so this will also move in the clockwise direction. बच्चों समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर. Yes, sir. इमेजिन हो रहा है ना, ये एम स्प्रिंग एक्शन से इसको टच में, ये ऊपर गया तो वो एम भी जाके उसको तटेगा, ऐसा उसको जाके ऐसा टच करेगा, मतलब स्प्रिंग एक्शन से. तो वो ये एक्सिस के अराउंड घूमेगा. ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड रोटेट होगा. ये रोटेट होगा तो ये वाई आर्म भी रोटेट होगा. बराबर, ये एम रोटेट होगा तो वाई आर्म भी रोटेट होगा.
इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वाई आर्म जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सॉरी ये एम जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एम का, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो मूविंग ब्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा अराउंड दिस पॉइंट। So y arm will also move in anti-clockwise direction. Okay, y arm will also move in the anti-clockwise direction. तो ये y arm ये इधर एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर पे फिट किया है y arm। तो ये y arm ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद सिलेंडर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप समझ रहे बच्चों, इमेजिन कर रहे हो? हाँ, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो m उसको थटता है जाके, so in around this axis it is rotating axis of rotation। तो m एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो y आर्म भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो सिलेंडर भी घूम रहा है, एंड और सिलेंडर को वो पॉइंटर कनेक्ट है तो पॉइंटर भी घूम रहा है। तो पॉइंटर जितना जाएगा उतना नंबर ऑफ रीडिंग हम काउंट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे जो नॉन डायमेंशन है स्लिप गेज का। सो दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ अननोन जॉब। बच्चों समझ में आया? यस सर। हाँ, बाकी बच्चे जरा बोलो। एक एक बच्चे का आवाज आ रहा है, बाकी बच्चे जरा मुंह खोलो बच्चों, ओपन योर माइक। हाँ सर, समझा। हाँ, यस सर, समझ यस में सर। आया ना? वेरी नाइस। अभी इसमें मैग्निफिकेशन दो स्टेज में, वो कैसा है हम लोग देखेंगे। तो देर आर टू स्टेज ऑफ मैग्निफिकेशन। तो इसमें ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, यहाँ तक ये नाइफ एज का डिस्टेंस है ए, और ये जो सिलेंडर का जो पॉइंट है ना सेंटर, ये और ये एक्सिस का, एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर का, ये डिस्टेंस है एल। तो फर्स्ट स्टेज मैग्निफिकेशन इज एल बाय ए। मतलब ये ऑब्जेक्ट जितना घूमेगा उतना पॉइंटर घूमेगा, वो पॉइंटर का लेंथ ज्यादा है ना, ये यहाँ से ये, तो एल बाय ए इज फर्स्ट स्टेज मैग्निफिकेशन। ओके, मतलब उतना बड़ा होगा क्योंकि वो लीवर फल्क्रम प्रिंसिपल के हिसाब से। तो इतने डिस्टेंस में ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो उतने प्रोपोर्शन से आगे जाएगा। कितने प्रोपोर्शन से? एल बाय ए, क्योंकि वो लंबाई जितनी ज्यादा उतना आपका मैग्निफिकेशन ज्यादा। एल बाय ए इज अ फर्स्ट स्टेज मैग्निफिकेशन, and R by R is a second stage magnification, where this capital R is nothing but radius of the pointer, and small r is the radius of the drum or cylinder which is moving. So R by R ये एक मैग्निफिकेशन, मतलब ये पॉइंटर जितना लंबा उतना उसका ये बढ़ेगा ना, लेवरेज बढ़ेगा ना। तो मतलब दो स्टेज में इसका मैग्निफिकेशन है, एक एल बाय ए एंड आर बाय आर, मतलब कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। बाद में टोटल मैग्निफिकेशन अगर करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एल बाय ए इंटू आर बाय आर। तो ये इतने वेरिएबल है ना, तो ये सब चेंज करके यू कैन प्ले विथ दिस वेरिएबल एंड यू कैन हैव दिस मच वैरायटी ऑफ सिग्मा कंपैरेटर। आपको जैसा मांगता है, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है, उतने मैग्निफिकेशन में ये अवेलेबल है बाजार में। मैक्सिमम 5000 तक है। हाँ? समझ गए बच्चों? हेलो, समझ गए? यस सर। तो इसका नाम है सिग्मा। अभी ये सिग्मा क्यों बोलते हैं क्या मालूम, इसमें क्या सिग्मा जैसा दिखता है रे, ये आकार है क्या रे व्यायाम का, क्या मालूम। इसका नाम सिग्मा कंपैरेटर रखा है इन्होंने। कुछ सिग्मा कंपनी वगैरह है क्या, क्या मालूम है। वो कुछ लिटरेचर आप बाद में पढ़ लेना किधर भी। इतना जरूरी भी नहीं हमको। सिग्मा कंपैरेटर। तो हमारे मैकेनिकल कंपैरेटर आज खत्म हो गए। कौन सा हमने लास्ट टाइम कौन सा देखा? ये जॉनसन्स माइक्रोकेटर, then reed type comparator and sigma comparator. Dial indicator is also, dial gauge is also treated as कंपैरेटर। ओके, मैकेनिकल कंपैरेटर। तो टोटल 4 मैकेनिकल कंपैरेटर हो जाएंगे फिर। डायल इंडिकेटर सबसे पहले, बाद में जॉनसन्स माइक्रोकेटर, देन रीड टाइप कंपैरेटर एंड सिग्मा कंपैरेटर। ये हो गए मैकेनिकल कंपैरेटर, जिसमें ऑल मैकेनिकल लिंकेजेस, लीवर्स, फल्क्रम, स्प्रिंग, ये सब है। अभी हम जाएंगे थोड़े दूसरे टाइप के भी कंपैरेटर्स अवेलेबल हैं, वो देखेंगे हम अभी। ओके, तो हम दूसरे कंपैरेटर्स अभी देखेंगे। आगे हम जाएंगे इसके तरफ। ये कौन सा है भाई? हाँ, ये वाला। ये है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर।
मतलब उसमें मैकेनिकल लिंकेज भी है और ऑप्टिकल सिस्टम भी है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो स्टार्ट में क्या रहता है कि यहाँ पे एक प्लंजर है, ये एक लीवर है और उसका जो बी पार्ट है इधर का, जो दूसरा पार्ट है वो एक मिरर को टच में किया है, और वो मिरर है पाइवोट पे है, इधर पिवोट पे, और यहाँ पे ऑप्टिकल सिस्टम है। अभी क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ऑप्टिकल सिस्टम है, यहाँ पे लाइट सोर्स है। फ्रॉम दिस लाइट सोर्स लाइट विल कम, यहाँ से कंडेंसर है, इट विल कंडेंस मेक इट पैरेलल, देन इट फ्रॉम द इंडेक्स होल इट विल बिकम अ पॉइंट सोर्स। तो अभी वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा पॉइंट सोर्स से, प्रोजेक्शन लेंस से यहाँ से आगे यहाँ पे आ जाएगा, मिरर पे आ जाएगा, और मिरर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, तो स्क्रीन पे वो इमेज दिखाई देगा आपको। वो इमेज के रूप में एक पर्टिकुलर वायर भी ऐसा घूमता रहता है वर्टिकल, और ऐसा पॉजिटिव ऐसा ये दिखेगा वायर, ऐसा इधर उधर ऐसा घूमता रहता है वो। तो उससे मालूम पड़ता है वो जीरो को एडजस्ट कर लेना। मतलब क्या करना, पहले ये प्लंजर है ना, नॉन डायमेंशन को सेट करो, और ये जो डायमेंशन है इधर का स्केल घुमा के उसका जो जीरो है ना, वो पहले जो स्टार्टिंग का इमेज रहता है ना, ऐसा वो ऐसा वो क्या कहते हैं हमको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो जीरो को एडजस्ट करो। अभी अभी क्या होगा कि समझो हमारा डायमेंशन अननोन डायमेंशन पे प्लंजर गया, आगे नॉन डायमेंशन जैसे कल मैंने बोला कुछ 40.02, या इसका हमने ये किया स्लिप गेज से सेट किया नॉन डायमेंशन, और अभी अननोन डायमेंशन उसको जो क्लोज है उस पे हम गए डिफरेंस देखने के लिए, और वो समझो वो डायमेंशन थोड़ा सा ज्यादा है प्लंजर का, तो क्या होगा, ये प्लंजर ऐसा ऊपर ऊपर जाएगा। प्लंजर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये लीवर है ना, तो लीवर से ये लीवर ऐसा नीचे जाएगा। ओके, ये जो लीवर है ना, ये राइट साइड का, ये नीचे जाएगा। लीवर एंड फल्क्रम रे बच्चों, ये देखो, ये लेफ्ट साइड ऊपर गया तो ये राइट साइड नीचे आएगा। तो ये मिरर जो है ना, वो मिरर इस पे रेस्ट है, वो मिरर नीचे आएगा। तो मिरर नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो आपकी जो इमेज है ना, इमेज शिफ्ट होगी। वो कैसे शिफ्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, ये मिरर टेपर है ना, तो यहाँ पे ये ऐसा वर्टिकल रे आता है, so that vertical ray is making some angle of incidence I around the normal। नॉर्मल यानी ये मिरर को परपेंडिकुलर जो है उसको नॉर्मल कहते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल मेक सम एंगल आई अबाउट दैट नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल मेक एंगल आर। ओके, सो I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स में ऑप्टिक्स में हम लोगों ने सीखा है। अभी ये जब हमारा मिरर डिफ्लेक्ट होगा, मिरर अगर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा तो आपकी इमेज टू थीटा से रिफ्लेक्ट होगी, बराबर है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फिर थीटा से चेंज होगा और रिफ्लेक्शन भी थीटा से चेंज होगा, तो टोटल इमेज आपकी टू थीटा से चेंज होगी। तो दिस इज द ऑप्टिकल मिरर प्रिंसिपल, व्हेन द mirror is tilted by theta, image is tilted by 2 theta, so that is a doubling effect। अभी इसमें मैग्निफिकेशन कैसा कैसा है हम देखते हैं। So this portion, lever and plunger and pivot, this portion is mechanical and above portion is optical. That's why it is a combination of mechanical and optical comparator, and so it is known as mechanical optical comparator। Now we will see the magnification of this। Okay, तो ये प्लंजर से ये पिवोट तक का जो डिस्टेंस है वो है L1, और यहाँ से पिवोट से ये डिस्टेंस है L2। तो L2 by L1 is first stage magnification, you can see here। now here from now this point is touching the mirror here, and its pivot, that mirror pivot is here, that much distance is L3, you can see here, it is shown by L3। and now from this pivot to screen, that distance is L4। So L4 upon L3 is a magnification, second stage magnification। But since this as it is a doubling effect, this 2 theta, when mirror is tilted by theta, the screen is tilted, this image is tilted by 2 theta, that's why it is multiplied by 2। Our total magnification in a mechanical magnification into optical magnification
or amplification. So it is totally this 2 into L2 by L1 into L4 upon L3. Understood बच्चों? समझ में आया? हाँ, समझ में आना Yes, sir. चाहिए। अभी इतना मतलब सामने तुम्हारे सर इमेजिन कर रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन बताएंगे एक बार। क्या हुआ बच्चों? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोला? सर मैग्नीफिकेशन रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैग्नीफिकेशन रिपीट कर सकते हैं जो हाँ सिखाया हाँ अभी हाँ, वो? मैग्निफिकेशन करता हूँ। ये हाँ ये तुमको दिख रहा है क्या यहाँ पे L2 L1 L2 ये सब दिख रहा है ना बराबर स्क्रीन या डिस्टेंस से? तो मैकेनिकल मैग्निफिकेशन कौन सा है? लीवर हाँ सर, प्रिंसिपल। हाँ ये हाँ देखो हाँ ये 1 mm गया। समझो फॉर एग्जांपल L2 L1 से 3 गुना ज्यादा है, हाँ? और L1 1 mm गया तो L2 नीचे कितना आएगा? 3 mm आएगा, बराबर है ना? 3 टाइम्स लीवर प्रिंसिपल के हिसाब से रे। L2 समझो 3 है और L1 1 है, तो ये 1 mm ऊपर जाने के बाद L2 कितना आएगा? नीचे 3 आएगा ना? आया क्या समझ में? हाँ सर, मैं हाँ तुम्हारे हाँ some people cannot imagine but I am not in front of you, otherwise मैं तुमको एक्चुअल वो लीवर और स्टिक बना के क्लासरूम में सिखाता हूँ। हियर इट इज मिसिंग। ओके, ये 1 mm जाने के बाद ये मतलब ये जितना उसकी लेंथ जितनी टाइम से उतना उसका मूवमेंट जाएगा ना, तो दैट मैग्निफिकेशन इज मतलब इसको जितना तुम करोगे उससे ज्यादा तो इसका मूवमेंट होगा। लीवर प्रिंसिपल रे, 12वीं में सीखा है ना लीवर प्रिंसिपल। हाँ, तो लीवर एंड पिवोट, फल्क्रम लीवर और पिवोट वो मैकेनिक्स में सीखा है ना तुमने फर्स्ट ईयर में। हाँ, so that is L2 upon L1 is first stage magnification and L4 upon L3 is second stage magnification, but twice effect is there because if mirror is tilted by theta then image is tilted by 2 theta, that's why it is multiplied by 2. Understood? Hello, query किसका था? यस सर, Okay, so that is about हाँ सर mechanical हो गया optical. क्लियर। ठीक है, mechanical optical, huh? Now this mechanical part is removed by one optical comparator, JIS ultra optimeter, it's the name. Carl JIS is one company, Carl JIS. So it is from Switzerland. So they are making this one. स्वीडन है क्या स्विट्जरलैंड? जरा चेक कर लेना आप लोग जरा लिटरेचर में। हाँ, कालजिस जेना वगैरह ऐसा वो उसके कैटलॉग आते थे। मैं जब एकदम नया पहले परचेस करते टाइम हम कैटलॉग वगैरह मंगवाते ना, इंडस्ट्री में भी ये बहुत यूज किया हम लोग। हाँ, मजा आता है करने में, ज्यादा टफ नहीं रहता है। खाली आप लोगों को रीडिंग लेना है। अभी वो कैसा रहता है यहाँ पे कि ये मैकेनिकल सिस्टम है ना, ये पूरी रिमूव कर दी यहाँ से और बोला है सिर्फ ऑप्टिकल ही लेंगे। तो ऑप्टिकल में इसमें क्या है, ये वर्कपीस का जो प्लंजर है ना जो यहाँ पे रहता है वो डायरेक्टली मिरर को ही टच कर दिया, ये मिरर को। अभी क्या होता है, एक साइड में तुम्हारा लैंप रहेगा, यहाँ पे ग्रीन फिल्टर रहेगा, ग्रीन कलर की कांच रहेगी, तो ग्रीन लाइट ऐसा शांत एकदम नजर में कुछ हॉट कलर कुछ नहीं आएंगे, जैसे रेड येलो ये हॉट कलर माने जाते हैं ना। और ब्लू ग्रीन ये एकदम कूल कलर है ना, तो उसमें ग्रीन फिल्टर ऐसा यहाँ से आएगा कंडेंसर से, और फिर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे यहाँ आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा। इधर एक रिफ्लेक्टेड मिरर है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा और जो डायरेक्शन में हमको चाहिए देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट के वहां पे जाएगा। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसमें से ये ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टारगेट ग्रेटिक्यूल है, यानी दैट टारगेट ग्रेटिक्यूल यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज मूविंग, और यहाँ पे आईपीस है दूसरे साइड में। तो आईपीस से हमको क्या दिखेगा, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो जो मूव हो रहा है वो देखेगा। तो इनिशियली यहाँ से रे आ रहा है और यहाँ पे वो टारगेट ग्रेटिक्यूल जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो एक जगह पे आके रुका है। हम लोग उधर स्केल घुमाएंगे, इधर जो रहता है ना ऑप्टिकल, इस पे वो स्केल घुमा के 0 पे करेंगे। मतलब ये जब नॉन डायमेंशन पे रहेगा ना वर्कपीस, वो टाइम अपना स्केल रहेगा 0 पे। अभी अपना काम चालू होता है, स्लिप गेज हटाएंगे हम लोग और ये जो प्लंजर है वो अननोन जॉब पे रखेंगे। अगर अननोन जॉब से ये थोड़ा ऊपर आता है प्लंजर तो क्या होगा, तो ये ऊपर आएगा तो ये
दिस मिरर विल बी डिफ्लेक्टेड बाय थीटा। हाँ, तो डबलिंग इफेक्ट नेचुरली इधर भी आने वाला है वो। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट ग्रेटिकुलर है ना वो राइट या लेफ्ट को चला जाएगा। मतलब ये मिरर ऐसा ऊपर टिल्ट होएगा ये साइड से, तो ये जो रे है वो ये साइड में चला जाएगा। इसका मतलब प्लस साइड यानी दिस इज प्लस साइड, दिस प्लस साइड हो गया तो आपका टारगेट ग्रेटिकुल लेफ्ट को आ रहा है। यहाँ पे देख लो, यू कैन इमेजिन ये टिल्ट हो गया ऐसा तो हो जाएगा। तो ये पूरा ऑप्टिकल सिस्टम है विच इज नोन एज ऑप्टिकल कंपैरेटर। समझ गए बच्चों? समझ गए क्या? यस सर। यस सर। ये रहा ऑप्टिकल, और ये ऊपर का जो है वो रहा मैकेनिकल ऑप्टिकल। अभी एक न्यूमेटिक है, न्यूमेटिक कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर में दो टाइप के हैं, एक फ्लो वेलोसिटी टाइप है और एक सोलेक्स गेज नाम का है। तो ये सोलेक्स गेज भी एक है और फ्लो वेलोसिटी टाइप। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने इसमें लेबोरेटरी में मैं दिखाऊंगा आपको। वो एक्सपेरिमेंट अपन को लेना है। अभी कल गवर्नमेंट की घोषणा हो गई कि 15 तारीख से खोल रहे हैं, लेकिन वो बोले पार्टली खोल रहे हैं 50%। तो अभी वो कैसा एडजस्ट करने का वो पता नहीं। 50% स्टूडेंट अगर आ गए कॉलेज में और बाकी 50% का क्या, फिर वो भी एक है ना, तो उनके लिए क्या फिर रिपीट करे क्या? तो सर्टन थिंग्स आर नॉट क्लियर येट। तो अभी मुझे भी प्रश्न पड़ा है कि वो ऑनलाइन पे लेने का क्या अभी एक्चुअली ऑफ एक्चुअल लेने का, क्योंकि अगर चालू हो रहा है तो लेट अस वेट फॉर 1 वीक कि हम लोग एक्चुअली अगर देख सकते हैं तो। लेकिन फिर वो 100% बच्चे आने चाहिए। मतलब अगर वो आएंगे बच्चे ना, क्योंकि अगर उस दिन का अगर वो बैच है तो बैच में ज्यादा भीड़ नहीं रहती, वो ऐसा थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रह सकते हैं ना। सो लेट अस सी, क्लासरूम में ही वो प्रॉब्लम आ सकता है कि बच्चों को दूर दूर बैठना पड़ेगा, ऐसा है। और फिर बाकी बच्चों का क्या है, फिर उधर जाके भी ऑनलाइन ही लेना है तो फिर ये ऐसा थोड़ा सा कुछ डाउट्स हमारे माइंड में है अभी। नथिंग इज क्लियर येट। तो वैसे भी एक हफ्ते के लिए हमने जो असाइनमेंट दिए थे वो कौन सा मिलिंग कटर वाला, वो हमको एक हफ्ता और चलने वाला है। तो वी विल वेट फॉर 1 वीक एंड वी विल वेट कि अपना वो होता है क्या रेगुलर। अगर उन्होंने कहा कि भाई पहले जैसा ही करो तो हम लोग ऑनलाइन लेंगे, अदरवाइज लेबोरेटरी में जाके ऑफलाइन लेंगे, उसमें ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि क्या है कि वो इमेजिन करने से अच्छा एक्चुअली आप लोग हाथ से करोगे ना तो ज्यादा याद रहेगा आपको, एंड इट इज गिविंग अ फुल सेटिस्फेक्शन एंड लाइक दैट। ओके, यहाँ तो मैं इमेजिन करवा करवा के आपको फिगर दिखा दिखा के करवा रहा हूँ, लेकिन वहां में आप एक्चुअली करोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, वो पक्का हो जाएगा एकदम। So that is in fact every time we do. Last time also we had done, and after that Corona started. Okay, मेट्रोलॉजी एक्सपेरिमेंट होने के बाद कोरोना स्टार्ट हुआ लास्ट टाइम, ऐसा हुआ। कुछ मार्च में चालू हुआ था वो, 18 मार्च को से कॉलेज बंद हो गया था, तब तक अपना काम हुआ था। तो ये टाइम क्या है, वो पूरा सेमेस्टर के स्टार्ट में ऐसा हो रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ। तो एनीवे दैट इज अबाउट, ऐसे ही बात करते करते मैंने बोला बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट जो है ये कंपैरेटर पे बेस्ड है, दैट इज ऑन न्यूमेटिक कंपैरेटर, डेमो ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। तो फ्लो वेलोसिटी टाइप एक है और सोलेक्स गेज। मैं पहले सोलेक्स गेज आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या रहता है, मालूम है क्या? यू नो प्लग गेज, आपने प्लग गेज देखा है ना? प्लग गेज, हाँ, प्लग गेज यस देखा है सर। ना आपने? तो ये प्लग गेज हाँ। में इसमें क्या होता है, न्यूमेटिक में सोलेक्स गेज में, न्यूमेटिक कंपैरेटर में हॉलो प्लग गेज यूज होता है। ये हॉलो प्लग गेज, आप बोलेंगे हॉलो क्या? तो ये इसमें हॉलो ऐसा एक बोर है, और ये बोर में अंदर आने के बाद इधर साइड में दो होल है, ऐसा साइड में ऐसा दो होल मारा है 180 डिग्री पे। हाँ? तो ये क्या होता है, अंदर वो हवा चला जाता है और वो हवा बाहर आ जाता है। ये आप बोलेंगे हवा का क्या फायदा, मैं बताता हूँ अभी सब कुछ। तो यहाँ से फैक्ट्री से जो कॉम्प्रेस्ड एयर जो तैयार होता है कंप्रेसर से, वो यहाँ से ऐसा आ रहा है कंप्रेस्ड एयर। ओके, सो इनपुट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से वो विथ सर्टन प्रेशर इट इज कमिंग हियर,
with certain pressure it is coming here, coming here, it is going inside the bone and coming out. अभी एक प्लग गेज है और हमारा एक अननोन जॉब है, वो अननोन जॉब का डायमेंशन कुछ दिया उन्होंने, लेट अस से 40.000 एंड 40.004 ऐसा कुछ डायमेंशन है, 4 माइक्रोन का वगैरह ऐसा उसका एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अभी हम क्या करेंगे, 40.000 का मैं ये 40 जो फिगर ले रहा हूँ ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि समझो तुमको 40.000 एंड 40.004 ये टॉलरेंस उसका दिया है, ये कंपोनेंट मेजर करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लग बराबर बनाएंगे कि जो 40.00 से थोड़ा सा कम साइज का है, ऐसा एक हम प्लग गेज बनाएंगे और एक रिंग गेज बनाएंगे हम लोग, रिंग गेज, स्टैंडर्ड रिंग गेज। इस प्लग गेज में जाने के लिए एक रिंग गेज बनाएंगे और वो रिंग गेज का डायमेंशन हम रखेंगे 40.002। तो ये फायदा क्या होगा, आपका जो डायमेंशन आपको पूछा है 40.00 एंड 40.004 उसके बीच में रहेगा ये रिंग एज 40.002। अभी क्या करेंगे मालूम है क्या, कि हम यहाँ से ये प्लग अंदर डालने के बाद क्या होगा, ये हवा यहाँ से आ जाएगी और उसको ये यहाँ से बैक प्रेशर क्रिएट होगा। किसको बैक प्रेशर क्रिएट होगा, रिंग गेज में डालने के बाद ये जो हवा पहले फ्रीली बाहर आ रही थी, इसको ये बैक प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि ये इसको विरोध करेगा ना, ये इजीली बाहर नहीं आने देगा, यहाँ से उसको ये गैप में से जाना पड़ेगा, तो नेचुरली बैक प्रेशर क्रिएट होगा ना यहाँ पे। हाँ बराबर है ना, तो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। हाँ, ये सर्टन प्रेशर से यहाँ से आ रहा था, पहले वो फ्रीली बाहर आ रहा था, अभी क्या किया, यहाँ रिंग गेज ने उसको रोक दिया, तो ये बैक प्रेशर क्रिएट हो गया। तो PS that is supply pressure minus PB that is back pressure. So PS minus PB will be the pressure here and वो पहले क्या करेगा, H हाइट तक आ जाएगा। मतलब ये जो पानी का जो हाइट है ना, ये सोलेक्स गेज है, यहाँ पे है ना आपका पानी का हाइट ऐसा पहले H तक आ जाएगा, ये H तक आ गया, ये पहले आ जाएगा तुम्हारा, मतलब ये वो विद दैट प्रेशर ये जो पानी था पहले यहाँ से या फिर ऐसा समझ लो आप, ये प्रेशर यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो शुरू में यहाँ तक था, फ्री जब था तो यहाँ पे था और अभी बैक प्रेशर क्रिएट होने से वो यहाँ तक आ गया। सोलेक्स गेज कहते हैं इसको, मैनोमीटर टाइप रहता है, ये पानी यहाँ तक आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये रिंग गेज निकाल देंगे और वर्क पीस लाएंगे। अगर हमारा वर्क पीस 40.002 वो जो रिंग गेज है ना उससे कम साइज का है तो क्या होगा, इमेजिन, टेल मी फ्रॉम द क्लास। अगर मेरा वर्क पीस ये रिंग गेज से भी कम साइज का बोर है, हम बोर साइज मेजर कर रहे हैं, तो वो कम साइज का बोर है, तो बैक प्रेशर ज्यादा होगा क्या कम होगा, मेरे को बोलो। ज्यादा कम होगा। ज्यादा होगा। बैक प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों मालूम है क्या, क्योंकि गैप ज्यादा कम है होगा। ना। हाँ, 40.002 को जो गैप था उससे 40 समझो 40 का वर्क पीस आया, 40.00 का आया, तो क्या होगा कि ये गैप कम होगा। गैप कम होगा तो ये फ्रीली एयर जो आ रहा था बाहर उसको भी विरोध हो रहा है, तो वो विरोध हो रहा है तो ये सब बैक प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पीबी विल बी मोर। तो नेचुरली क्या होगा कि मेरा जो ये जो लाइन है ना पहले 40.002 को जो सेट किया है वो और नीचे जाएगा ऐसा, तो वो नीचे कितना ग्रेजुएशन जाता है वो यहाँ पे ग्रेजुएट किया जाता है, यहाँ पे ग्रेजुएशन किया जाता है, तो 2 माइक्रोन नीचे गया। इसका मतलब मेरा जो पहला सेट किया हुआ रिंग गेज कितना था, 40.002 माइनस 2 माइक्रोन, तो मतलब कितना हो गया, 40.000 हो गया, यानी एक्सेप्ट हो गया। आप समझ रहे हैं बच्चों, उसके टॉलरेंस में है तो एक्सेप्ट करो। समझो वो बैक प्रेशर इतना आया कि वो 40.00 से भी नीचे चला गया, 39.998 चला गया, देन यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इट फॉर रिपेयरिंग, मतलब 38.998 से और एक कट लेना पड़ेगा आपको 40 लाने के लिए। और समझो ऐसा हो गया कि ये गैप ज्यादा रह गया,
यानी 40.004 से भी ज्यादा हो गया, 40.006, तो वो केस में क्या हो जाएगा, आपका एयर फ्रीली फ्लो होने लगेगा क्योंकि गैप बढ़ेगा ना। तो ये जो है ना तुम्हारा ये क्या कहते हैं वाटर लेवल ये ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये लेवल में यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं कौन से लेवल तक आपको एक्सेप्ट करना है। तो इधर 2 मार्क करेंगे, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं, उसके बीच में जब तुम्हारा वाटर लेवल आता है तो तुम एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर चला जाता है तो रिजेक्ट करो। समझ में आ रहा है बच्चों? हमारे हाँ सर। लेबोरेटरी में डायरेक्ट बर्डन प्रेशर गेज है, ऐसा सोलेक्स गेज नहीं है। तो वो बर्डन प्रेशर गेज में हम 0 को सेट करते हैं, नॉन डायमेंशन जो रिंग गेज वाला है, और बाद में अननोन डायमेंशन पे आने के बाद वो राइट लेफ्ट चला जाएगा, तो वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द जॉब। ओके, इसको सर डिप एक्चुअली ट्यूब का फंक्शन क्या है? हाँ, डिप ट्यूब का फंक्शन क्या है? उसका ट्यूब का यही फंक्शन है कि ये वाटर लेवल कम ज्यादा होता है बैक प्रेशर से। ये पहले तो ये दोनों जो है ना एक लेवल पे रहते हैं, पहले तो ये दोनों है ना एक लेवल पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बैक प्रेशर क्रिएट होता है, ये पानी है ना ये यहाँ से नीचे चला आता है, नीचे नीचे इसको प्रेशर करके नीचे आता है, तो ये लेवल लेवल नीचे आता है उसका। तो ये सोरेक्स गेज है, ये वाटर टाइप अगर है तो। अपने कॉलेज में डायरेक्ट बर्डन प्रेशर गेज लगा है, तो वो डायरेक्ट प्रेशर गेज पे प्रेशर दिखाएगा ऐसा। तो दैट इज मोर बेटर देन दिस, क्योंकि ये बल्कि है, लेकिन ये क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में हमको सिखाना पड़ता है सोलेक्स गेज। ओके, ऐसा। यहाँ पे ये बंद है, देखो ये बंद है यहाँ, ऐसा एग्जिस्ट एयर बबलिंग हियर इन दिस गैप। डिप ट्यूब बोला इसको, डिप ट्यूब इसको। सिमिलर ये फ्लो वेलोसिटी भी ऐसा है, अभी है ना यहाँ पे सेम, जैसे जैसे यहाँ पे इधर स्केल है ना ये ग्लास ट्यूब पे, वैसे इधर भी एक सेपरेटली स्केल रहता है। ये कैसा है मालूम है क्या? फ्लो वेलोसिटी टाइप, ऐसा एक टेपर ग्लास ट्यूब है, ऊपर थोड़ा ज्यादा है, और तुम्हारा जो कॉम्प्रेस्ड एयर है ना यहाँ से आता है, नीचे से आता है और ऐसा ऊपर चला जाता है और वो यहाँ पे आता है। अभी सेम इधर का जो कनेक्शन है ना प्लग गेज का ये वगैरह, ये मैंने सेपरेटली नहीं दिखाया। वो ये जो साइड है ना टू गेजिंग हेड बोला ना, ये टू गेजिंग हेड, तो ये पोर्शन है सेम ऐसा। अभी अभी समझो है ना स्टार्ट में जो रिंग गेज है उसके लिए फ्लोट का ये पोजीशन है। अगर बैक प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, ये बैक प्रेशर ज्यादा आएगा तो ये एयर प्रेशर यहाँ से उल्टा आ जाएगा। तो फ्लोट कैसा रहता है मालूम है क्या? एक ऐसा हॉलो ये रहता है, ऐसा छोटे से पतरे का ऐसा बनाया हुआ फ्लोट। यानी हम लोग बचपन में ऐसे भिंगरी खेलते थे मालूम है क्या, वो ऐसा ट्विस्टेड इसमें से ऐसा एक ये बना के ऐसा ऊपर रखेलते थे, तो वो ऐसा कैसा हवा में चलता रहता ना, फ्लोट फ्लोटिंग फ्लोटिंग भिंगरी। अभी तुम्हारे टाइम में वो मिलता है कि नहीं बाजार में मालूम नहीं, हमारे टाइम में बचपन में था। ट्विस्टेड ऐसा एक स्ट्रिप रहता है और उसमें एक ऐसा अंदर ये रहेगा, और उसको ऐसा दबाएगा तो वो ट्विस्टेड ऐसा करके हवा में एकदम चला जाता है, वो भिंगरी जैसा, मतलब डॉक्टर का पाता चला जाता है ना वो ब्लेड्स, वैसा वो ब्लेड ऊपर ऐसा घूमते घूमते चला जाएगा, तो ऐसा उसको कहते हैं फ्लोट। तो ये फ्लोट है ना, फ्लोट यानी एक या भिंगरी हम लोग कहते हैं। तो ये हल्का रहता है, तो जैसा ही यहाँ से हवा आएगा ना ये ऊपर ऐसा फ्लोट होता रहेगा ऐसा, यहाँ पे वो गिरेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ से आपका इनपुट प्रेशर है। लेकिन बैक प्रेशर जब ज्यादा आएगा तो ये फ्लोट नीचे की पोजीशन में आएगा। तो कितने पोजीशन पे आ गया उतने से ये डायमेंशन कम करेंगे हम लोग, जो स्टैंडर्ड रिंग गेज का था। तो मतलब आइदर यू यूज सोलेक्स गेज और फ्लो वेलोसिटी टाइप, दोनों पॉपुलर है। ओके, हाँ, तो अपने अपने इसमें ना हम बर्डन प्रेशर गेज यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस डिप ट्यूब और मैनोमीटर ट्यूब। ओके बच्चों, सो दिस इज अबाउट योर कंपैरेटर। कंपैरेटर हमारे खत्म हो गए। एक है ना कभी कभी है ना मतलब यूनिवर्सिटी में वो पूछते थे पहले, एक ब्रुक्स लेवल कंपैरेटर नाम का एक कंपैरेटर है, और दूसरा एडनरॉल्ड कंपैरेटर। इसके स्लाइड मेरे पास नहीं है अभी यहाँ पे। तो वो दे आर एक्चुअली हाई
accuracy comparator. They are comparators of comparator. They are used to check these comparators. अगर आपने ये कंपैरेटर में थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, तो ब्रुक्स लेवल कंपैरेटर या एडनरॉल्ड कंपैरेटर, एडनरॉल्ड बहुत फेमस है, उससे इसको चेक करते हैं। तो एडनरॉल्ड कंपैरेटर भी देखेंगे हमारे पास अगर है तो। ये स्लाइड में मैंने नहीं बनाया है एडनरॉल्ड का। सो ये जो रेगुलरली यूज्ड जो कंपैरेटर्स है, ये खत्म हो गए अपने। तो कंपैरेटर ऑफ कंपैरेटर्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं तुम्हारे को शेयर किया है ना, मैं थोड़ा सा देख